All right. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. What we have done in last lecture, we have completed our website, that is student management system. And within that student management system, we have seen many controls which are present in ASP.NET, right? So with the help of that website, we have seen other features also, that is master page, validation controls, and many other controls, that is grid view control, other standard controls, navigation controls. We have seen this all controls with the help of student management system website. And within last lecture, we have completed student management system website with 3 different home areas, that is student home area, faculty home area, and admin home area. And we have also created many pages which are related to guest user. We have also seen what is guest user, what is authenticated user, and what is authorized user. We have seen these 3 different roles of the user in last lecture. From today, we will see other controls, and for that we will create another examples, or more precise, we can say that we will create another website for studying other controls and other concepts which are present in ASP.NET. Today, first of all, we will see hidden field control, and for that purpose, first of all, we need to create one website. If we want to create website, we will move on to file menu. Within file, new, and from new, I will select website, right? Okay. As soon as I have selected a website from the file menu, it is providing me different options. From left hand pane, I will select Visual Basic, and from middle pane, I will select ASP.NET Empty Website, which is the second option. Again, I repeat, I will select ASP.NET Empty Website, which is the second option. After that, I will click on Browse button, right? So it allows you to select the path कि आपको कहाँ पे ये website create करनी है. You know that I am creating my website in D drive. Within that, NBJ is the folder. Within NBJ, there is examples folder, right? So examples is the folder within which I want to create website. So I will select that folder, and after that I will specify the name of the website. I will give the name of the website as Controls EX, right? I will give the name of the website as Controls EX, as I want to demonstrate different types of controls through this website, and I will click on OK, right? So it has created our website folder. We are able to see that folder in Solution Explorer. See over here, this is Control EX, our website, and within that website there is only one file, that is web.config file, which is the configuration file for our website. All right, as we have created empty website, so right now we will not get any other thing, any other items within this website. If we want to add any items within our website, what we can do, we can right click on our website within Solution Explorer, and we can add different kind of items within our website. All right. So first, as I want to demonstrate hidden field control, I need to add pages within my website. But before that, what is hidden field? आपने already HTML के अंदर hidden kind of thing input के अंदर type equal to hidden आपने पढ़ा है. What is the significance of that tag? इनपुट टैग के अंदर अगर आप टाइप इक्वल टू हिडन लिखोगे और उसके अंदर जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे वो वैल्यू पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हिडन. Same thing is possible within ASP.NET also, and it is possible with the help of hidden field control जो ASP.NET के अंदर present है. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ASP.NET के अंदर इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्स है ताकि आप इजीली उसको यूज कर पाओ. सो हिडन फील्ड इज आल्सो द कंट्रोल. इट इज द सेम एज कि जो आपने इनपुट टैग के अंदर टाइप इक्वल टू हिडन करके आपने HTML के अंदर पढ़ा है, right? So to demonstrate that control, I will add 2 pages in my website. So right click on the website, add new item. Within add new item, I will select first option, that is web form. First page I will create is h1.aspx, and I will click on
add, right? So it will create the page. So the page is created, right? This is the design view of our page, which contains over here that is div tag. Now within this, I will place hidden field control from standard tab, right? So I have placed hidden field control from the standard tab from within my toolbox. Now, as you can see, it is a hidden field, means it doesn't allow you to take input. ये यूजर को इनपुट देने के लिए अलाउ नहीं करेगा, but hidden field control can store the value within it. Again, I repeat, hidden field control can store the value within it. और अगर आपको हिडन फील्ड कंट्रोल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, सो प्रॉपर्टी विंडो में जाके उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, दैट इज वैल्यू, राइट? प्रॉपर्टी विंडो में आपको उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, दैट इज वैल्यू. आई विल सिलेक्ट दैट प्रॉपर्टी एंड आई विल गिव वैल्यू फॉर एग्जांपल 10, राइट? मैंने हिडन फील्ड की वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू सेट कर दी 10. ऑलराइट, नाउ वी नीड टू ऐड अनदर पेज. So what I will do, again within Solution Explorer, I will click on my website, add new item. I will select first option, that is web form. After selecting web form, I will give the name of the page as h2.aspx and I will click on add, right? So the second page is also created. All right, first page के ऊपर हमने hidden field control रखा है. नाउ इफ आई वांट कि ये जो हिडन फील्ड कंट्रोल के अंदर मैंने जो वैल्यू 10 स्टोर की है प्रॉपर्टी विंडो के अंदर, वो मुझे h2.aspx पेज के ऊपर रिट्राइव करनी है. अगेन आई रिपीट, h1.aspx पेज है विच इज द फर्स्ट पेज, उसके ऊपर मैंने हिडन फील्ड कंट्रोल रखा है. हिडन फील्ड कंट्रोल की वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर मैंने 10 स्टोर किया है. Now what I want to do, ये hidden field के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे ये सेकेंड पेज that is h2.aspx के ऊपर मुझे रिट्राइव करना है. So what I need to do, I will place one button control. It's over here, right? उसकी ID प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, that is btn click. उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे click, right? Along with that, हम उसकी पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी सेट करेंगे. अगेन आई रिपीट, हम उसकी पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी सेट करेंगे. Now what is the significance of post back URL property of button control? As the name says, it is post back URL. What is post back? हमें पता है कि post back is the action which is taken by interactive web page. उसके अंदर क्या होता है, पेज प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे जाता है और प्रोसेसिंग होने के बाद सेम पेज हमें वापस मिलता है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट बैक, राइट? सो पोस्ट बैक के अंदर अगर मुझे ऐसा करना है कि जब भी ये h1.aspx पेज पोस्ट बैक होगा, मुझे h1.aspx पेज नहीं चाहिए, बट मुझे h2.aspx पेज चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बटन की पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी के अंदर मैं h2.aspx पेज को सेट करूंगी, ताकि क्या होगा, बटन की क्लिक इवेंट तो एग्जीक्यूट होगी, पोस्ट बैक भी होगा, लेकिन पोस्ट बैक होने के बाद वो हमें h2.aspx पेज देगा, राइट? h1.aspx पेज नहीं देगा. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी. सो मैंने बटन की पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया, उसको ओपन किया. ओपन करने के बाद आई विल सिलेक्ट द नेम ऑफ द पेज एज h2.aspx एंड आई विल क्लिक ऑन ओके बटन. जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, यू आर एबल टू सी विद इन प्रॉपर्टी विंडो के हमारी पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ~h2.aspx वैल्यू सेट हो गई. इट मीन्स जब भी हम ये बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, h1.aspx पेज पोस्ट बैक होगा, लेकिन पोस्ट बैक होने के बाद हमें h2.aspx पेज मिलेगा, राइट? ऑलराइट, अनदर थिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो h1.aspx पेज है उसके फॉर्म टैग के अंदर, अगेन आई रिपीट, h1.aspx पेज है, उसके फॉर्म टैग के अंदर वी नीड टू सेट मेथड इज इक्वल टू गेट. अगेन आई रिपीट, वी नीड टू सेट मेथड is equal to get, right?
हमें मेथड को गेट सेट करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट पेज के ऊपर हम ये जो हिडन फील्ड है उसकी वैल्यू रिट्राइव कर पाए। सो मैंने सेव किया, राइट। अब h2.aspx पेज के ऊपर उसकी पेज लोड इवेंट मुझे ओपन करनी है। सो h2.aspx पेज को मैंने ओपन किया, उसके ऊपर डबल क्लिक किया, उसकी पेज लोड इवेंट ओपन हुई, राइट। उसकी पेज लोड इवेंट के ऊपर व्हाट आई विल राइट, ध्यान से नोट डाउन करना, आई विल राइट रिस्पॉन्स डॉट राइट and within that I will use request object dot query string, and within query string I will write hidden field 1, right, and 2 times parenthesis over. All right, so what I have done, again I repeat, h2.aspx पेज को ओपन किया, उसके ऊपर डबल क्लिक किया, सो मुझे पेज लोड इवेंट मिली। पेज लोड इवेंट के ऊपर मुझे कोई भी कंट्रोल के अंदर ये वैल्यू रिट्राइव नहीं करनी है, मुझे डायरेक्ट पेज के ऊपर ये वैल्यू लिखनी है। अगर मुझे पेज के ऊपर कुछ भी लिखना है, यू नो कि हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड को यूज करना पड़ेगा। सो मैंने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड को यूज किया, पैरेंथेसिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि क्वेरी स्ट्रिंग नाम का कलेक्शन होगा। सो क्वेरी स्ट्रिंग नेम का कलेक्शन हमने यूज किया, एंड विद इन दैट हमने हमारे हिडन फील्ड जो भी कंट्रोल है उसका नेम दिया, दैट इज हिडन फील्ड 1। हमने h1.aspx पेज के ऊपर आप देख सकते हो हमने हिडन फील्ड कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी चेंज नहीं की थी, दैट्स वाई उसकी आईडी प्रॉपर्टी है हिडन फील्ड 1। सो हिडन फील्ड 1 जो हमारा कंट्रोल का नेम है, वो सेम कंट्रोल मैंने यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया। ये मुझे कब मिलेगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैंने यहाँ पे फॉर्म के सोर्स मतलब फॉर्म टैग के अंदर मेथड इज इक्वल टू गेट सेट किया है। एज आई हैव सेट मेथड इज इक्वल टू गेट मतलब यूआरएल के अंदर मुझे ये हिडन फील्ड की वैल्यू मिलेगी, और यूआरएल में से अगर मुझे कोई भी चीज रिट्राइव करनी है, आई नीड टू यूज क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे यूआरएल में से कोई भी वैल्यू रिट्राइव करनी है, आई कैन यूज क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो मैंने वही यूज किया, और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन में मैंने हिडन फील्ड 1 विच इज द नेम ऑफ हिडन फील्ड कंट्रोल, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, h1.aspx पेज को स्टार्ट पेज सेट करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया वो मुझे पूछ रहा है कि आपको web.config फाइल मॉडिफाई करनी है। ऑब्वियसली अगर वो खुद मॉडिफाई करता है तो हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, वी ओनली क्लिक ऑन ओके बटन, राइट। जैसे ही हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो web.config फाइल के अंदर ये हमारे डीबगिंग के रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं वो कर देगा अपने आप, और हमारा पेज हमें ब्राउजर में लोड करके देगा। ऑलराइट, सी ओवर हियर, आप यूआरएल के अंदर देख पा रहे हो दैट द नेम ऑफ द पेज इज h1.aspx, right? It is specified over here. We are getting click button, it is over here, right? So click button के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, so उसने हमें कहाँ पे नेविगेट करके दिया, उसने हमें h2.aspx पेज के ऊपर नेविगेट करके दिया, सी विद इन यूआरएल h2.aspx, और हमें पेज के ऊपर वैल्यू मिल रही है दैट इज 10। ये 10 वैल्यू कहाँ से रिट्राइव हुई, सी ओवर हियर, यहाँ पे यूआरएल में अगर आप देखोगे यहाँ पे एम्परसेंट के बाद हिडन फील्ड 1 इज इक्वल टू 10 हमें दिखाई दे रहा है, राइट। अगेन आई रिपीट, यूआरएल के अंदर आपको एम्परसेंट हिडन फील्ड 1 इज इक्वल टू 10 दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमने यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर मेथड इज इक्वल टू गेट सेट किया है। इट मीन्स हमें सारी वैल्यूज यूआरएल के अंदर स्टोर की हुई मिलेगी, and if I want to retrieve value from the URL, then I will use query string collection of request object. So request object का query string collection मैंने use किया, and within that मैंने control का name specify किया, that is hidden field 1.
सो URL के अंदर हिडन फील्ड 1 की वैल्यू 10 है, सो वो रिट्राइव करके हमें h2.aspx पेज के ऊपर हमने डिस्प्ले की with the help of response.write method, right? So this is the significance of hidden field control कि अगर आप हिडन फील्ड कंट्रोल के ऊपर कुछ भी हिडन फील्ड कंट्रोल के अंदर आप कुछ भी स्टोर करोगे, वो डायरेक्टली पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करेगा। सी h1.aspx पेज है, यहाँ पे हमने हिडन फील्ड कंट्रोल लिया है, लेकिन h1 के ऊपर वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। वो कहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है? वो h2 के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है, बिकॉज हमने एक्सप्लिसिटली वो वैल्यू रिट्राइव की है, इसलिए वो h2 के अंदर h2 के ऊपर वो डिस्प्ले कर रहा है, राइट? अगर हमने क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन के अंदर से हमने वैल्यू रिट्राइव नहीं की होती तो ये h2.aspx पेज के ऊपर भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करता, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस कि आप हिडन फील्ड कंट्रोल यूज करोगे तो जब तक आप एक्सप्लिसिटली वैल्यू रिट्राइव नहीं करोगे, वो वैल्यू पेज के ऊपर वो डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट? एंड hidden field is also considered as client-side state management technique. Again, I repeat, hidden field is also considered as client-side state management technique. Why it is considered as client-side state management technique? Because हम hidden field के अंदर जो भी वैल्यूज स्टोर करेंगे, वो वैल्यूज क्लाइंट साइड के ऊपर स्टोर होती है, राइट? URL के अंदर वो स्टोर करता है। That's why हिडन फील्ड इज नोन एज क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। आप हिडन फील्ड के अंदर यूजर रिलेटेड दूसरी वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हो जो उतनी क्रिटिकल नहीं है। अगर कोई क्रिटिकल वैल्यूज है तो आप हिडन फील्ड के अंदर स्टोर नहीं करोगे, राइट? बिकॉज इफ मेथड इज इक्वल टू गेट आपने यूज किया है तो वो वैल्यू URL के अंदर डिस्प्ले होगी, और क्रिटिकल वैल्यूज होती है, कॉन्फिडेंशियल वैल्यूज होती है यूजर की, राइट? इंफॉर्मेशन होती है, वो हम URL के अंदर डिस्प्ले नहीं करेंगे, राइट? सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिडन फील्ड कंट्रोल। सो वन कंट्रोल इज कंप्लीटेड ओवर हियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनदर कंट्रोल दैट इज प्लेस होल्डर कंट्रोल, राइट? अब हम दूसरा कंट्रोल देखेंगे दैट इज प्लेस होल्डर कंट्रोल। उसके लिए हम पहले एक पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के लिए सेम प्रोसीजर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम के अंदर हम एक पेज ऐड करेंगे, उसके लिए मैं वेब फॉर्म सिलेक्ट करूंगी। पेज का नेम ऑलराइट रहने देते हैं, default.aspx वो हमें दे रहा है, हम सेम पेज का नेम रहने देते हैं एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड, राइट? ऑब्वियसली ऐड बटन पे क्लिक किया तो उसने पेज क्रिएट करके हमें दे दिया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट प्लेस होल्डर कंट्रोल। अगेन as the name says, it will just hold the place on the page. वो पेज के ऊपर सिर्फ प्लेस होल्ड करके रखेगा और कोई काम नहीं है प्लेस होल्डर कंट्रोल का। You can also consider it as a container control because placeholder control दूसरे controls को contain कर सकता है। दूसरे controls हम placeholder control के अंदर store कर सकते हैं। That's why you can say placeholder control as a container control, right? Again, I repeat, as the name says, placeholder control will just hold the place on our पेज। वो प्लेस को होल्ड करके रखेगा ताकि फ्यूचर में अगर हमें उसके अंदर कोई चीज डिस्प्ले करनी है तो हम उसके अंदर डिस्प्ले कर पाए, राइट? ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा DIV टेक के अंदर, टूल बॉक्स में से स्टैंडर्ड टैब में से आई विल सिलेक्ट प्लेस होल्डर कंट्रोल, राइट? अगेन आई रिपीट, टूल बॉक्स में स्टैंडर्ड टैब में से मैंने प्लेस होल्डर कंट्रोल रखा अपने पेज के ऊपर, राइट? अभी हम उसका नेम चेंज नहीं कर रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट उसका नेम है प्लेस होल्डर 1, राइट? बिलो दैट आई एम प्लेसिंग वन बटन कंट्रोल, एक बटन कंट्रोल हम रखते हैं, राइट? नाउ व्हाट आई वांट टू डू, पहले हम प्लेस होल्डर कंट्रोल को विजिबल फॉल्स कर देंगे, मतलब वो पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बटन कंट्रोल के ऊपर डायनामिकली एक लेबल कंट्रोल क्रिएट करेंगे।
आपने VB.NET में पढ़ा है कि आप डायनामिकली कोडिंग का यूज करके आप कंट्रोल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम एक लेबल कंट्रोल डायनामिकली क्रिएट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे और उसके बाद लेबल कंट्रोल को प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर ऐड करेंगे और बाद में प्लेस होल्डर की विजिबल प्रॉपर्टी हम ट्रू सेट करेंगे। ये सारी प्रोसीजर हम बटन कंट्रोल की क्लिक इवेंट के ऊपर करेंगे, राइट। अनदर थिंग, आप ये प्लेस होल्डर कंट्रोल कहाँ पे यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको बटन कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट। कितने बटन कंट्रोल्स होते हैं? 40। क्यों 40 होते हैं? बिकॉज आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मतलब फैकल्टी ने जो टेस्ट सेट की है आपके लिए वो 40 क्वेश्चंस की थी, इसलिए वहां पे 40 बटन कंट्रोल्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर फैकल्टी 20 क्वेश्चंस की टेस्ट सेट करेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ 20 बटन कंट्रोल्स मिलेंगे। इट मीन्स कि वो जो सारे बटन कंट्रोल्स है वो डायनामिकली क्रिएट होते हैं, पहले से क्रिएट नहीं किए हैं। And if I want to add this kind of control at particular location on my page, at that place I can use placeholder control. Again I repeat, at that place I can use placeholder control. मतलब डिजाइनिंग टाइम के अंदर जब मैं ऐसा पेज डिजाइन करूंगी तो उस जगह पे मैं प्लेस होल्डर कंट्रोल को प्लेस करूंगी जहां पे मुझे ऐसा कोई कंटेंट चाहिए जो डायनामिकली जनरेट होता है। सो वहां पे मैं प्लेस होल्डर कंट्रोल को डिजाइनिंग टाइम पे रख दूंगी। बाद में जब ये पेज एग्जीक्यूट होगा, पेज के ऊपर कोडिंग थ्रू डायनामिक कंटेंट जनरेट होता है या फिर कंट्रोल्स जनरेट होते हैं, वो मैं क्रिएट करूंगी और बाद में वो सारे कंट्रोल्स मैं प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर सेट कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, ताकि क्या होगा कि वो प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर मुझे सारे कंट्रोल्स दिखाई देंगे। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज प्लेस होल्डर कंट्रोल हमने वहां पे रखा है जहां पे मुझे वो कंट्रोल्स डिस्प्ले करने हैं, right? That's why the significance of placeholder control is just to hold the place on the page. वो प्लेस को सिर्फ होल्ड करके रखता है ताकि फ्यूचर में आप उसके अंदर डायनामिक कंटेंट या फिर डायनामिक कंट्रोल्स उसके अंदर ऐड कर पाओ, राइट। सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो बटन्स मिल रहे हैं, दैट बटन्स आर आल्सो प्लेस्ड विद इन प्लेस होल्डर कंट्रोल, राइट। डिजाइनिंग टाइम के वक्त वहां पे प्लेस होल्डर कंट्रोल सिर्फ रखा था। बाद में जैसी टेस्ट फैकल्टी सेट करती है अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। अगर 20 क्वेश्चंस है तो 20 बटन्स क्रिएट होंगे और प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर 30 क्वेश्चंस की टेस्ट है तो 30 बटन्स क्रिएट होंगे और प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर ऐड हो जाएंगे, राइट। सो लाइकवाइज हम यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल क्रिएट करते हैं और प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर हम उसे डिस्प्ले करके देखते हैं। सो फॉर दैट पर्पस पहले तो हम बटन की प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, राइट। सो प्रॉपर्टी विंडो में बटन की आईडी प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज btn display, राइट, and text property I will set it as display. All right, now what I will do, डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट ओपन करते हैं। ऑलराइट, प्लेस होल्डर की विजिबल प्रॉपर्टी को भी हम फॉल्स सेट कर देते हैं, राइट। सो मैंने प्लेस होल्डर को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी विंडो में से उसकी विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर दिया। ऑलराइट, अब हम डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट ओपन करते हैं। डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे क्या करना है? मुझे पहले तो लेबल कंट्रोल डायनामिकली क्रिएट करना है, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है और प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर उसे डिस्प्ले करना है। ऑलराइट, सो इफ आई वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोल डायनामिकली, मुझे वो पर्टिकुलर कंट्रोल के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, वो पर्टिकुलर कंट्रोल के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज एज यू नो विद इन .NET ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, सो कंट्रोल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ क्लासेस। और अगर आपको क्लास को यूज करना है, यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास।
सो हमें लेबल कंट्रोल को ऐड करना है। लेबल कंट्रोल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन .NET फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ क्लास। सो हम लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो बटन की क्लिक इवेंट के अंदर डिम LBL एज न्यू लेबल, राइट। मैंने लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आफ्टर दैट मैं लेबल की आईडी प्रॉपर्टी सेट करूंगी। अब अगर मुझे लेबल की आईडी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो मैं ये जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज करूंगी। So I will write over here that is lbl.id is equal to, let's take it as L1. मैंने ID क्या सेट की, L1 सेट की। आफ्टर दैट उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल lbl.text इज इक्वल टू, हम उसके अंदर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, राइट। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी लेबल की। उस लेबल का बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर सेट करते हैं। लेट्स टेक इट एज LBL बैक कलर is equal to, let's take it for example aqua, right। बैक कलर मैंने aqua सेट किया। आफ्टर दैट फॉर कलर सेट करते हैं। LBL फॉर कलर इज इक्वल टू, लेट्स टेक इट एज कोई डार्क कलर ले लेते हैं, ब्लू वायलेट, राइट। मैंने फोरग्राउंड कलर सेट किया। उसकी बॉर्डर स्टाइल सेट करते हैं। सो LBL बॉर्डर स्टाइल, लेट्स टेक इट एज डॉटेड, राइट। डॉटेड सेट करते हैं उसकी बॉर्डर स्टाइल। अब फॉन्ट साइज सेट करते हैं लेबल के अंदर। इफ आई वांट टू सेट फॉन्ट साइज, सो मैं उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करूंगी। सो LBL डॉट स्टाइल, राइट। स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर मुझे फॉन्ट साइज सेट करनी है। सो मैं क्या करूंगी, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन में मैं लिखूंगी फॉन्ट हाइफन साइज, that is the name of the property within style property, is equal to, I want to set it as 20 pixels. So double quotation में I will write 20 px, right। Again I repeat, मैंने font size set करने के लिए जैसे हम प्रॉपर्टी विंडो में से स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लाइकवाइज मैंने LBL जो लेबल का ऑब्जेक्ट है उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन, और उसकी वैल्यू मैंने सेट की 20 पिक्सेल्स, राइट। दैट इज ऑल्सो आई हैव सेट विद इन डबल कोटेशन। सो अब तक मैंने क्या किया, लेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट की, टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की, फिर उसका अपीयरेंस मुझे चेंज करना था, फॉर्मेटिंग करना था। सो मैंने बैक कलर, फॉर कलर, बॉर्डर स्टाइल, फिर फॉन्ट साइज, ये सारी चीजें मैंने लेबल कंट्रोल की सेट कर दी। Now what I will do, I will place this object of label control in placeholder control. Again I repeat, I will place this object that is LBL of label control within placeholder control. So for that purpose हम क्या करेंगे, I will write the name of the control that is placeholder 1 dot controls, that is the collection within placeholder control, and add. Again I repeat, placeholder 1 is the name of the control, dot controls, controls उसका collection है, और हमें पता है कि अगर collection में हमें कोई चीज ऐड करनी है तो हमें add method का यूज करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे add method का यूज किया, and within add method I will write LBL which is the name of our object, right। सो मैंने प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर LBL ऐड कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे प्लेस होल्डर कंट्रोल की विजिबल प्रॉपर्टी ट्रू सेट करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने प्लेस होल्डर कंट्रोल की विजिबल प्रॉपर्टी अब तक फॉल्स सेट की थी। सो आई विल राइट प्लेस होल्डर 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, राइट। प्लेस होल्डर 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, मतलब प्लेस होल्डर कंट्रोल अब हमें पेज के ऊपर, रन टाइम के ऊपर जब हम ये बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा, राइट। सो हमने ये टास्क परफॉर्म किया। अब क्या करते हैं, ये पेज को रन करना है तो मुझे डिफॉल्ट डॉट ASPX के ऊपर राइट क्लिक करके उसको स्टार्ट पेज सेट करना पड़ेगा, एंड मुझे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो सी ओवर हियर, डिफॉल्ट डॉट ASPX पेज हमारा एग्जीक्यूट हुआ, उसके ऊपर मुझे अभी सिर्फ डिस्प्ले बटन दिखाई दे रहा है। लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे ही मैंने डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक किया, प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर जो हमने लेबल डायनामिकली क्रिएट किया है वो हमें दिखाई
दे रहा है। हमने उसके अंदर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की थी, उसकी बॉर्डर डॉटेड सेट की थी, फॉर कलर हमने ब्लू वायलेट सेट किया था और बैक कलर एक्वा सेट किया था। वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही है, राइट। सो इस तरह से अगर आपको पेज के ऊपर आपने टेबल क्रिएट किया है और वो टेबल के अंदर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आप प्लेस होल्डर कंट्रोल रखोगे तो आपका ये लेबल वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। मीन्स एट पर्टिकुलर लोकेशन आप कोई भी कंट्रोल डायनामिकली ऐड कर पाओगे, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस होल्डर कंट्रोल। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट कंट्रोल देखेंगे, दैट इज लॉगिन कंट्रोल्स, राइट। सो उसके लिए हम नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं। सो ये सोल्यूशन को मैं क्लोज करती हूँ, राइट। मतलब हमारी वेबसाइट देखिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर में सब नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज मैंने सोल्यूशन को क्लोज कर दिया। अब मुझे नई वेबसाइट क्रिएट करनी है। सो अगेन द सेम प्रोसीजर, फाइल, न्यू वेबसाइट, राइट। I will select Visual Basic from the left pane, middle pane में से मैं select करूंगी ASP.NET empty वेबसाइट। और पहले मैंने वेबसाइट के अंदर पाथ सेट किया था, सो मुझे वही पाथ मिल रहा है। Only I need to give the name of the website, so I will give login controls EX, राइट। मैंने वेबसाइट का नाम नेम दिया login controls EX and I will click on OK। ऑब्वियसली जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया उसने मुझे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट क्रिएट करके दी और उसके अंदर सिर्फ एक फाइल है, दैट इज web.config फाइल। अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल्स का यूज करना है और लॉगिन कंट्रोल्स का यूज करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, मुझे पहले पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। नाउ लॉगिन कंट्रोल्स की फंक्शनलिटी क्या है, वो हमें यूजर क्रिएट करके देगा, लॉगिन करने के लिए हमें इंटरफेस देगा, पासवर्ड चेंज करने के लिए इंटरफेस देगा और पासवर्ड रिकवरी के लिए दैट इज फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनलिटी करने के लिए वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। सो हमें 4 टास्क परफॉर्म करने हैं। सो हम यहाँ पे 4 पेजेस क्रिएट करेंगे, राइट। सो राइट क्लिक ऑन द वेबसाइट, एड न्यू आइटम, फर्स्ट पेज, I will create it as, for example, create user, right? My page name is createuser.aspx page and I will click on add. All right, I will create second page, again new item, second page I will create it as login page.aspx, right? And I will click on add. Again I repeat, page का name मैंने दिया login page.aspx और add के ऊपर मैंने click किया। थर्ड पेज हम क्रिएट करेंगे, थर्ड पेज का नेम देंगे फॉर एग्जांपल चेंज पासवर्ड पेज डॉट ASPX। अगेन आई रिपीट, पेज का नेम मैंने दिया चेंज पासवर्ड पेज डॉट ASPX एंड आई विल क्लिक ऑन एड। एंड फोर्थ पेज आई विल क्रिएट इट एज forget password डॉट ASPX, राइट, forget password डॉट ASPX और मैंने एड बटन के ऊपर क्लिक किया। So see over here, हमारे 4 pages create हो गए, that is create user.aspx, login page.aspx, change password page.aspx and forget password.aspx, right? So let's start. Login controls हम start करते हैं। create user.aspx पेज के डिजाइन व्यू में मैं गई, div tag के अंदर मैंने कर्सर प्लेस किया, राइट। एंड फ्रॉम टूल बॉक्स हम क्या यूज करेंगे, लॉगिन टैब के अंदर जो कंट्रोल्स है अब हम उसका यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, लॉगिन टैब के अंदर जो कंट्रोल्स है हम उसका यूज करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस ये क्रिएट यूजर का पेज है, सो हम यहाँ पे क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल का यूज करेंगे। सो मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ, राइट। सी जैसे ही मैंने क्रिएट यूजर विजार्ड के ऊपर डबल क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो उसने मुझे पूरा इंटरफेस अपने आप क्रिएट करके दे दिया, जिसके थ्रू हम नया यूजर क्रिएट कर पाए। हमें कौन कौन सी फील्ड मिली, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर। और यहाँ पे आप एस्ट्रिक देख पा रहे हो, दैट इज फॉर वैलिडेशन। उसने ये पूरा विजार्ड क्रिएट किया है जिसके अंदर वैलिडेशंस भी प्रेजेंट है, राइट। देखिए यहाँ पे ये जो स्मार्ट टैग ओपन हुआ है उसके अंदर स्टेप लिखा है, स्टेप को आप ओपन करके देखोगे
देयर आर 2 स्टेप्स। पहला तो साइन अप स्टेप है जिसके ऊपर हमें ये इंटरफेस मिल रहा है, एंड सेकंड इज कंप्लीट स्टेप। देखो मैंने कंप्लीट स्टेप को सिलेक्ट किया, सो वो हमें जब भी ये यूजर क्रिएट होगा वो हमें क्या करके देगा, मैसेज देगा, दैट इज योर अकाउंट हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगेन आई रिपीट, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये हमें ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये मैसेज कब डिस्प्ले करेगा, जब ये साइन आउट जो स्टेप है उसके अंदर मैं क्रिएट यूजर बटन के ऊपर क्लिक करूंगी। उसके बाद अगर यूजर परफेक्टली क्रिएट होता है तो वो मुझे वो सक्सेसफुल का मैसेज देगा। अनदर थिंग, आप कहीं पर भी आप क्लिक करोगे, देखिए आप इंडिविजुअल कंट्रोल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये पूरा कंट्रोल ही सिलेक्ट होगा, राइट। और ये जो अलग अलग व्यूज बने हैं, राइट, ये अलग अलग व्यूज आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ मल्टी व्यू कंट्रोल, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। ऑलराइट, मुझे क्या करना है, ये जो क्रिएट यूजर का जो कंट्रोल है, अगर इसके ऊपर यूजर परफेक्टली क्रिएट होता है तो ये जो कंप्लीट स्टेप के अंदर ये जो कंटिन्यू बटन है, कंटिन्यू बटन के ऊपर जब भी यूजर क्लिक करेंगे तो मुझे उसको लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करके दे देना है। सो व्हाट आई विल डू, मैंने क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल को सिलेक्ट किया। प्रॉपर्टी विंडो में मैं क्या सेट करूंगी, प्रॉपर्टी विंडो में आई विल सेट कंटिन्यू डेस्टिनेशन पेज यूआरएल प्रॉपर्टी। द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंटिन्यू डेस्टिनेशन पेज यूआरएल, मतलब जब भी यूजर ये कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेगा उसे कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, मैं उसको क्लिक करूंगी। उसके अंदर आई विल सेट लॉगिन पेज डॉट ASPX, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी पेज प्रेजेंट है। लॉगिन पेज डॉट ASPX पेज को सिलेक्ट किया और ओके बटन पे क्लिक करूंगी, मतलब यूजर ये जब भी कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेगा वो हमें लॉगिन पेज ओपन करके दे देगा, राइट। ओके, सो अब हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हमारा क्रिएट यूजर पेज हो गया, वी हैव डेवलप क्रिएट यूजर पेज। अब हमें लॉगिन पेज को डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज हमने कंटिन्यू बटन की क्लिक पेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर लॉगिन पेज सेट किया है, राइट। अब लॉगिन पेज के ऊपर क्या होगा, अगर यूजर को हम लॉगिन करने की फंक्शनैलिटी देते हैं तो मुझे लॉगिन का विजार्ड उसको देना पड़ेगा, जिसके अंदर हम यूजर नेम और पासवर्ड पूछेंगे। एक बार अगर यूजर लॉगिन कर देता है तो हमें उसको वेलकम मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये दो फंक्शनैलिटी हमें करनी है, राइट, ऑन द सेम पेज। अगेन आई रिपीट, ऑन द सेम पेज। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉगिन व्यू कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा। सो DIV टैग के अंदर मैंने कर्सर प्लेस किया और उसके अंदर मैंने लॉगिन व्यू कंट्रोल रखा, राइट। आप लॉगिन व्यू कंट्रोल रखोगे वो हमें कितने व्यूज प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड अस 2 व्यूज, दैट इज एनोनिमस टेम्पलेट एंड लॉग्ड इन टेम्पलेट। वो हमें 2 व्यूज प्रोवाइड करता है। एनोनिमस टेम्पलेट मतलब ऐसा टेम्पलेट जो अगर यूजर लॉगिन नहीं है वो डिस्प्ले करेगा, दैट इज एनोनिमस, पता नहीं है कि यूजर कौन सा है। और लॉग्ड इन टेम्पलेट वो तब डिस्प्ले करेगा जब यूजर लॉगिन सक्सेसफुली करके देगा, राइट। सो देयर आर 2 व्यूज फॉर लॉगिन व्यू कंट्रोल। पहले मैं एनोनिमस टेम्पलेट व्यू को मैं सिलेक्ट करती हूँ, उसके अंदर कर्सर रखती हूँ, राइट। कर्सर रखने के बाद आई विल प्लेस लॉगिन कंट्रोल, बिकॉज ऑब्वियसली अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो पहला टास्क मुझे वही करके देना है यूजर को, राइट। सो मैं यहाँ पे लॉगिन व्यू कंट्रोल के अंदर लॉगिन टैब में से आई विल प्लेस लॉगिन कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, लॉगिन व्यू कंट्रोल के अंदर मैंने एनोनिमस टेम्पलेट के अंदर मैंने क्या प्लेस किया, लॉगिन कंट्रोल प्लेस किया। देखो जैसे ही मैंने लॉगिन कंट्रोल प्लेस किया, अगेन उसने मुझे पूरा विजार्ड दे दिया है, इंटरफेस दे दिया है, जिसके अंदर वो हमें क्या पूछेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऑलराइट, सेम लॉगिन व्यू कंट्रोल के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लॉगिन व्यू कंट्रोल के अंदर नाउ आई विल मूव ऑन टू लॉग्ड इन टेम्पलेट। ऑलराइट, हम एक काम करते हैं, वहां पे हम फॉरगेट पासवर्ड की लिंक भी प्रोवाइड करके दे देते हैं, राइट। सो लॉगिन व्यू के अंदर एनोनिमस टेम्पलेट के अंदर हम हाइपरलिंक कंट्रोल रखेंगे। सो आई विल प्लेस वन हाइपरलिंक कंट्रोल, और हाइपरलिंक कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करूंगी फॉर एग्जांपल फॉरगॉट पासवर्ड, बिकॉज आपको पता है कि फॉरगॉट पासवर्ड आप तभी करोगे जब आपको पासवर्ड नहीं पता है। सो ऑब्वियसली वो लॉगिन के साथ साथ चलेगा।
और उसकी नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी में सेट कर दूंगी, हमने पेज क्रिएट किया हुआ है दैट इज forgot password .aspx पेज, राइट, and I will click on OK. So again I repeat, login view control के अंदर anonymous template के अंदर मैंने login control place किया, एक hyperlink place की, जिसके अंदर मैंने forgot password का पेज सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉग्ड इन टेम्पलेट के अंदर जाना है, मतलब अगर यूजर लॉगिन कर देता है तो मुझे उसको क्या डिस्प्ले करना है, वेलकम मैसेज डिस्प्ले करना है। और वेलकम मैसेज डिस्प्ले करने के लिए फर्स्ट में ये लॉगिन व्यू कंट्रोल है, उसके अंदर मैं क्या करूंगी, लॉगिन व्यू कंट्रोल के अंदर मैं पहले वेलकम लिखूंगी, राइट, सो आई विल राइट वेलकम, राइट। वेलकम के बाजू में हम क्या करेंगे, लॉगिन नेम कंट्रोल का यूज करेंगे। देखो आप जैसे ही आपने लॉगिन नेम कंट्रोल प्लेस किया, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यूजर नेम, मतलब वो यहाँ पे यूजर नेम अपने आप डिस्प्ले कर देगा। अगेन उसके बाजू में मैं एक दूसरा कंट्रोल प्लेस करूंगी दैट इज लॉगिन स्टेटस कंट्रोल। लॉगिन स्टेटस मतलब वो अपने आप मुझे लॉग आउट लिखा हुआ देगा। अगेन आई रिपीट, वो मुझे अपने आप लॉग आउट लिखा हुआ देगा, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो वो हमें डायरेक्टली नेविगेट कर देगा जो हम पेज वहां पे सेट करेंगे वहां पे। सो अब मुझे क्या करना है, आपको पता है कि अगर आप एक बार लॉगिन कर देते हो तो लॉगिन करने के बाद आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, राइट। और अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, चेंज पासवर्ड का पेज यूज करना पड़ेगा। और चेंज पासवर्ड का पेज यूज करने के लिए हमें वहां पे नेविगेट करना पड़ेगा। सो नेविगेट करने के लिए अगेन हम हाइपरलिंक कंट्रोल का यूज करेंगे। सो मैंने लॉगिन व्यू कंट्रोल के अंदर कर्सर रखा और हाइपरलिंक कंट्रोल मैंने प्लेस किया। अगेन एज इट इज अ हाइपरलिंक कंट्रोल, हम उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। पहले तो आई विल राइट इट एज चेंज पासवर्ड, राइट। और उसकी नेविगेट यूआरएल ऑलरेडी हमारे पास पेज है दैट इज चेंज पासवर्ड पेज .aspx। सो मैंने वो सेट कर दिया, राइट। ऑलराइट, अगेन आई रिपीट, हाइपरलिंक कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की चेंज पासवर्ड, और नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी में आई हैव रिटन चेंज पासवर्ड पेज .aspx। मतलब हमने यहाँ पे 2 व्यूज बनाए। फर्स्ट इज एनोनिमस व्यू, जिसके अंदर हमने लॉगिन कंट्रोल रखा और उसके साथ फॉरगेट पासवर्ड की हाइपरलिंक रखी। एंड आफ्टर दैट हमने सेम पेज के ऊपर हमने दूसरा व्यू बनाया, जिसके अंदर हम यूजर को वेलकम मैसेज प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ लॉगिन के लिंक प्रोवाइड करेंगे। एंड अलोंग विथ लॉगिन लिंक हमने चेंज पासवर्ड की लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड की है, राइट। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे चेंज पासवर्ड पेज। सो चेंज पासवर्ड पेज के अंदर हम क्या करेंगे, div टैग के अंदर मैंने कर्सर रखा और यहाँ से चेंज पासवर्ड कंट्रोल को मैंने प्लेस किया। देखो आप जैसे ही मैंने चेंज पासवर्ड कंट्रोल को प्लेस किया, वो मुझे फील्ड्स दे रहा है दैट इज पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। ये विजार्ड भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ हमें मिल रहा है, राइट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, ऑब्वियसली हम इसके व्यूज देखेंगे। देयर आर 2 व्यूज, चेंज पासवर्ड व्यू एंड सक्सेस व्यू। अगेन सक्सेस व्यू के अंदर वो हमें एक मैसेज डिस्प्ले किया हुआ दे रहा है दैट इज योर पासवर्ड हैज बीन चेंज। कंटिन्यू बटन के ऊपर हमें कहाँ पे नेविगेट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर हमें लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करना है। सो हम क्या करेंगे, चेंज पासवर्ड कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू डेस्टिनेशन पेज यूआरएल प्रॉपर्टी को हम सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी विंडो में से, और उसके अंदर हम सेट कर देंगे लॉगिन पेज .aspx और उसके ऊपर ओके क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, कंटिन्यू बटन के ऊपर हमें लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है। सो मैंने क्या किया, चेंज पासवर्ड कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी विंडो में से कंटिन्यू डेस्टिनेशन पेज यूआरएल को मैंने सिलेक्ट किया और उसके अंदर मैंने लॉगिन पेज .aspx पेज को सेट कर दिया, राइट। सो अगेन हम हमारा चेंज पासवर्ड व्यू के ऊपर चले जाते हैं। सो ये हमें ऐसा व्यू प्रोवाइड कर रहा है। एंड द लास्ट पेज इज फॉरगॉट पासवर्ड पेज। फॉरगॉट पासवर्ड पेज के अंदर हम div टैग के अंदर कर्सर रखेंगे एंड द लास्ट कंट्रोल दैट इज रिमेनिंग दैट इज पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल। सी
मैंने पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल रखा। आपको पता है कि अगर आपको पासवर्ड रिट्राइव करना है तो पहले आपको यूजर नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वो यूजर नेम आप प्रोवाइड करोगे सो वो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर देते हो तो वो आपको सक्सेस का मैसेज देगा, दैट इज योर पासवर्ड हैज बीन सेंड टू यू। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये फॉरगॉट पासवर्ड का जो कंट्रोल है वो आप यूज करोगे, वो आपको पासवर्ड ईमेल में सेंड करके देगा। और अगर आपको ईमेल रिलेटेड फंक्शनैलिटी करनी है तो आपको SMTP सर्वर चाहिए, राइट। और अभी हमारे पास ये मशीन के ऊपर SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं है, तो वो हमें ईमेल अभी करके नहीं देगा। लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सो मैंने फॉरगॉट पासवर्ड का जो कंट्रोल है दैट इज पासवर्ड रिकवरी, उसको मैंने सिलेक्ट किया है। प्रॉपर्टी विंडो में आप देखोगे सी ओवर हियर मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी मिल रही है दैट इज मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी। और मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर आप सारी चीजें सेट कर सकते हो, राइट। कि कौन ईमेल भेज रहा है, सब्जेक्ट क्या है उसका, प्रायोरिटी क्या है, वो सारी चीज हम ये मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको हम पहले यूजर नेम के ऊपर सेट कर देते हैं। सी देयर आर 3 व्यूज ऑफ पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल। फर्स्ट व्यू इज यूजर नेम, जिसके अंदर हमें वो यूजर नेम पूछेगा। सेकंड व्यू इज क्वेश्चन, जिसके अंदर वो क्वेश्चन रिट्राइव करेगा और हमें आंसर पूछेगा। अगर आंसर सही है तो वो हमें हमारा पासवर्ड ईमेल में सेंड करके देगा। लेकिन एज आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड SMTP सर्वर अभी यहाँ पे ये मशीन के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं है, तो जब हम ये स्टेप के ऊपर आएंगे वो मेल सेंड करने की ट्राई करेगा और ऑब्वियसली वो मेल सेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो हमें एरर देगा। ये जो सक्सेस का मैसेज है वो अभी हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, बिकॉज वो मेल सेंड करने की ट्राई करेगा और मेल सेंड नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो हमें एरर देगा, राइट। सो हम पहले व्यू पे चले जाते हैं, दैट इज यूजर नेम, राइट। इसको सेव कर देते हैं। सी लॉगिन टैब के अंदर चेंज पासवर्ड, वो हमने ये पेज के ऊपर यूज किया, राइट। आफ्टर दैट क्रिएट यूजर विजार्ड, वो हमने क्रिएट यूजर पेज के ऊपर यूज किया। लॉगिन कंट्रोल, वो हमने यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर यूज किया। लॉगिन नेम कंट्रोल, वो हमने सेम लॉगिन पेज के ऊपर ये जो दूसरा व्यू है वहां पे हमने यूज किया, इट इज ओवर हियर। लॉगिन स्टेटस, ये यहाँ पे जो लॉगिन लिखा हुआ है वहां पे हमने यूज किया। लॉगिन व्यू कंट्रोल, दिस इज दिस वन, जो एक्चुअल व्यू के अंदर ये सारी चीजें हमने बनाई है, दैट इज लॉगिन व्यू कंट्रोल। और पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल वो हमने यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पेज के ऊपर हमने यूज किया। अब हम क्या करते हैं, सारी चीजें मैंने सेव की है। क्रिएट यूजर पेज को मैं स्टार्ट पेज सेट करती हूँ एंड आई विल एग्जीक्यूट इट। फर्स्ट टाइम जब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज ये हमारे लिए पूरी डेटाबेस, टेबल्स, वो सारी चीजें हमें क्रिएट करके देगा। अगेन आई रिपीट, ये हमारे लिए डेटाबेस, टेबल, सारी चीजें हमें क्रिएट करके देगा। सी ये हमारा क्रिएट यूजर वाला पेज है। लेट्स क्रिएट वन यूजर। यूजर नेम में मैं देती हूँ निकिशा, राइट। पासवर्ड में मैं देती हूँ, लेट्स टेक इट एज फॉर एग्जांपल निकिशा 123। कंफर्म पासवर्ड में मैं देती हूँ निकिशा, राइट। देखो जैसे ही मैंने सिर्फ निकिशा लिखा, नीचे मुझे एक मैसेज आ गया दैट पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड मस्ट मैच, मतलब वो दोनों सेम होने चाहिए। ये वैलिडेशन भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। सो आई विल राइट 123। ईमेल में मैं देती हूँ nikisha@gmail.com। security question I will give it as what is your favorite color, right। and security answer में मैं देती हूँ black, right। and I will click on create user button, right। see what it is giving, password length minimum 7, alphanumeric character required 1, मतलब एक alphanumeric character भी होना चाहिए जो मैंने नहीं दिया था। so let's give it nikisha.123, nikisha.123,
and I will click on create user button. राइट जैसे ही मैंने क्रिएट यूजर बटन के ऊपर क्लिक किया, वो डेटाबेस, टेबल्स के अंदर फील्ड्स, सारी चीजें क्रिएट करेगा और क्रिएट करने के बाद ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो हमें सेव करके दे देगा। बट ओवर हियर हमें मैसेज मिल रहा है कि हमारा एसक्यूएल सर्वर का जो यूजर इंस्टेंस है वो रन नहीं हो रहा है। मतलब 2 डेज पहले जो प्रॉब्लम आई थी वो सेम प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आ रही है कि हमारा एसक्यूएल सर्वर का जो यूजर इंस्टेंस है वो रन नहीं हो रहा है। सी फेल टू जनरेट यूजर इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर। हम फिर से ट्राई करके देखते हैं। राइट इसको मैं क्लोज करती हूँ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फिर से ट्राई करके देख लेते हैं। राइट पहले तो मैं फोल्डर को रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश किया लेकिन उसके अंदर ये एक फोल्डर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, उसको हम पहले अभी डिलीट कर देते हैं। राइट एंड आफ्टर दैट इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। राइट यूजर नेम आई विल स्पेसिफाई निकिशा, password I will specify nikisha.123, confirm password I will specify nikisha.123, email I will specify nikisha@gmail.com, security question what is your favorite color, answer is black, and again I will click on create user button. Let's hope अभी वो user instance create हो जाए। ऑल राइट सी यूजर इंस्टेंस क्रिएट हो गया, मतलब हमारा यूजर भी क्रिएट हो गया और हमें सक्सेसफुल का मैसेज मिल गया। राइट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लॉगिन व्यू के अंदर लॉगिन टेम्पलेट मिल रहा है और मुझे यहाँ पे देखिए मेरे यूजर का नेम नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, डेस्कटॉप, मतलब ये जो मेरे मशीन का नेम है वो मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज लॉगिन कंट्रोल्स बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर वर्क करते हैं, लॉगिन कंट्रोल्स बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑथेंटिकेशन के ऊपर वर्क करते हैं। राइट मतलब जो हमारा मशीन का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है वो बाय डिफॉल्ट वो ले लेंगे। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है और मुझे अपने यूजर के हिसाब से लॉगिन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, web.config फाइल में मुझे ऑथेंटिकेशन का जो टैग है वो मुझे सेट करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, web.config फाइल में ऑथेंटिकेशन का जो टैग है वो मुझे सेट करना पड़ेगा। राइट सो ऑथेंटिकेशन के अंदर मुझे क्या सेट करना है, आई विल सेट ऑथेंटिकेशन मोड इज इक्वल टू फॉर्म्स। अगेन आई रिपीट, आई विल सेट ऑथेंटिकेशन मोड इज इक्वल टू फॉर्म्स। राइट सो मैंने क्या किया, ये जो कंपाइलेशन टैग है उसके नीचे मुझे ऑथेंटिकेशन टैग का यूज करना पड़ेगा और वो ऑथेंटिकेशन टैग के अंदर मुझे मोड सेट करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू फॉर्म्स। राइट अगेन आई रिपीट, मुझे web.config फाइल में ये जो system.web टैग है वो system.web टैग के अंदर मुझे ऑथेंटिकेशन मोड सेट करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू फॉर्म्स। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू विंडोज होगी। अगेन हम इसको रन करके देख लेते हैं। राइट अब हम दूसरा यूजर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी। पासवर्ड में मैं देती हूँ abc.1234, abc.1234, email I am giving abc@gmail.com, security question same I will use what is your favorite color, answer I will use it as black, and I will click on create user button. See successful का मैसेज हमें मिल गया। now I will click on continue। जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया, सी वेलकम मैसेज मिला और वेलकम के साथ मुझे अब एबीसी लिखा हुआ मिल रहा है। अगेन आई रिपीट, वेलकम मैसेज के अंदर मुझे एबीसी लिखा हुआ मिल रहा है। राइट ओके उसके बाद मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया। लॉग आउट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया अब मुझे वो 2 ऑप्शंस दे रहा है, इधर मैं लॉग इन कर सकती हूँ या फिर फॉरगॉट पासवर्ड कर सकती हूँ। लॉग इन करते हैं, आई विल गिव एबीसी, पासवर्ड इज abc.1234 एंड आई विल क्लिक ऑन लॉग इन। सी अगेन मैंने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया उसने मुझे वेलकम मैसेज दिया और एबीसी यूजर नेम डिस्प्ले किया एंड यहाँ पे लॉग आउट की लिंक है। राइट सो लेट्स डू वन थिंग, चेंज पासवर्ड करके देखते हैं। चेंज पासवर्ड के अंदर हम ओल्ड पासवर्ड देते हैं abc.1234,
न्यू पासवर्ड हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल abcd.1234. confirm new password abcd.1234 and I will click on change password. जैसे ही मैंने चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया उसने मुझे सक्सेसफुल का मैसेज दिया और कंटिन्यू बटन दिया. आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन. राइट, जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया हमारा पहला वाला जो लॉगिन पेज था वहां पे आ गया. अब मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करती हूँ. राइट, अब हम फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनलिटी करके देखते हैं. सो यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड. फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर फॉर एग्जांपल हमारा जो यूजर है दैट इज एबीसी वो हम ले लेते हैं. सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं. देखो उसने हमारा जो यूजर नेम था वो यहाँ पे डिस्प्ले किया. डेटाबेस में से उसने सिक्योरिटी क्वेश्चन रिट्रीव किया. आंसर आई विल गिव इट एज ब्लैक एंड आई विल क्लिक ऑन सबमिट बट इट विल गिव मी एरर. देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि ईमेल एड्रेस और वो सारी चीजें स्पेसिफाई करनी है फ्रॉम के अंदर, लेकिन हमारा SMTP सर्वर अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है इसलिए उसने हमें यहाँ पे एरर दे दी. Right, so this was all about login controls. Now one another important thing आप यहाँ पे देखोगे. सी जैसे ही मैंने रिफ्रेश फोल्डर किया यहाँ पे बाय डिफॉल्ट app_ डेटा का फोल्डर क्रिएट हुआ और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस उसने अपने आप क्रिएट कर दी दैट इज ASP.NET-DB.MDF. ये ASP.NET-DB.MDF के अंदर उसने अपने आप बहुत सारे टेबल्स भी क्रिएट किए जो आप यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में देख सकते हो. सी कितने सारे टेबल्स उसने यहाँ पे क्रिएट करके हमें दे दिए. राइट, और वो टेबल्स के अंदर उसने वैल्यूज भी हमें स्टोर करके दे दी जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे. दैट इज 2 यूजर्स. फर्स्ट वाज निकिशा एंड सेकंड वाज ABC. सी निकिशा एंड ABC. आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेरी नहीं लिखी भी नहीं किया फिर कुछ नहीं किया फिर भी उसने अपने आप डेटाबेस क्रिएट की, टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर इंसर्ट क्वेरी भी उसने लिख दी. बट द थिंग इज दैट अगर आपको ये लॉगिन कंट्रोल्स यूज करने हैं सो वो जो विजार्ड प्रोवाइड करता है आप वो यूज कर सकते हो. राइट, लेकिन आप उसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो लेकिन वो चेंजेस को आपको फिर से डेटाबेस के साथ मैप करना पड़ेगा. सो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी. राइट स्टूडेंट, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉगिन कंट्रोल्स. लेट्स एंड आवर लेक्चर ओवर हियर. सॉरी मैंने 5 मिनट ज्यादा ले ली. राइट, मैं अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करती हूँ. अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. 1 मिनट हम लेते हैं.